اگر سونے کا گھر بھی مجھ کو دنیا میں مل جائے ساری زندگی میں اس میں نہیں رہ پاؤں گا، میں 1000 سال نہیں رہ پاؤں گا، 100 سال کے اندر ہی اس سونے کے گھر کو چھوڑ کر مجھ کو جانا پڑے گا۔ کہاں جانا ہوگا؟ قبر میں جانا ہوگا، مٹی کی خوراک بننی پڑے گی۔ یہ سب کو معلوم ہے، چاہے تقریر سنے یا نہ سنے، یہ سب کے لیے فکسڈ ٹائم ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے سب کو جانا ہے۔ تو سونے کے گھر میں رہیں یا مٹی کے گھر میں رہیں، جب چھوڑ کے جانا ہے تو مٹی سونا دونوں برابر ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے جو کبھی بھی انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا، کرائے کے گھر میں رہا۔ مرید کہتے تھے حضور اپنا گھر کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آپ حکم تھے میں آپ کے لیے اپنا گھر میں بنا کے دے دوں۔ کہا بیٹا جب مکان چھوڑ کے دنیا سے جانا ہی ہے تو اپنا گھر رہے وہی بات ہے، کرائے میں رہو وہی بات ہے۔ جب چھوڑ کے ہی جانا ہے تو اپنا گھر کرائے کا گھر دونوں برابر ہے۔ اور پھر اپنا گھر اگر ہوگا اسے چھوڑ کے جانے میں زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ جس کام کو بنانے میں جس کے بنانے میں محنت لگتی ہے، پیسہ لگتا ہے، دل جس میں اٹکا رہتا ہے، اس کو چھوڑنے میں بھی اتنا ہی ملال ہوتا ہے۔ آدمی 40 سال تک نمازیں چھوڑ کر جھوٹ بول کر ایک چھوٹا سا گھر بنایا، اور جب اس گھر کو چھوڑ کے مرنے لگتا ہے تو سینے پہ اتنا بڑا بوجھ رہتا ہے، میں نے کیا غصب کر دیا، نمازیں چھوڑ دی اس مکان کے لیے، میں نے روزہ ترک کیا اس نماز کے لیے، اس مکان کے لیے، میں جھوٹ بولا 50 کروڑ کہ اس میں لگے گا 1 لاکھ روپے، میں نے کہہ دیا کہ 10 لاکھ روپے تو صرف خرچ ہے، اس میں ہمارا بینیفٹ کہاں گیا؟ میں جھوٹ بول کے کمایا اور جھوٹ بول کے میں نے مکان بنایا۔ آج یہ مکان میرے ساتھ نہیں جا رہا ہے، میرے بچے اس مکان میں رہیں گے، اب میں قبر میں جا رہا ہوں۔ بہت زبردست صدمہ ہوتا ہے، ایسا صدمہ کہ اگر وہ بیان کرے تو زمین پھٹ جائے، ان کا سینہ پھٹ کے ان کا صدمہ سینے سے باہر نکل جائے، چونکہ فرشتہ اس کو پکڑے رہتا ہے تاکہ اس کی بے چینی گھر والوں پہ ظاہر نہ ہو، ورنہ ایسا مرنے والا چیختا چلاتا ہے کہ فرشتہ اگر نہیں پکڑے تو گھر کے سارے لوگ گھر چھوڑ کے جنگل بھاگ جائے، کوئی اس کو نہلانے والا نہ ملے، کوئی اس کی قبر کھودنے والا نہ ملے، کوئی اس کو کفنانے والا نہیں ملے۔ روح نکلتے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے 100 تلوار سے کسی کو مارا حملہ کیا جائے، اس میں اتنا درد نہیں ہوتا جتنا درد روح نکلتے وقت ہوتا ہے، مگر اس کا اظہار نہیں ہوتا چونکہ فرشتے اس کو پکڑے ہوئے رہتے ہیں، فرشتوں کی کنٹرول میں وہ شخص رہتا ہے، ورنہ اگر دوسروں کے سامنے اس کی بے چینی ظاہر ہو گئی، ماں تڑپ کے مر جائے گی، باپ تڑپ کے مر جائے گا، گھر کے سارے لوگ غریبان نوچ کر گھر سے بھاگ جائیں گے۔ آیا ہے کتاب میں جب مرنے والا مرتا ہے اور گھر کے لوگ روتے ہیں تو اس کی دہلیز پر کھڑا ہو کے ایک فرشتہ کہتا ہے رونے والوں سے تم لوگ کیوں رو رہا ہے ان کی موت پر؟ مجھے تو اس گھر میں اس وقت تک آنا ہے جب تک کہ ایک بچہ یہاں زندہ رہے گا، اور اس وقت تک میں آؤں گا۔ تم اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا میں پہچانتا ہوں، تم دیکھتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں دیکھتا ہوں کل صبح کے 8 بجے اس کی میں روح نکالنے کے لیے اس گھر میں آؤں گا۔ تمہاری اولاد ہے تم نہیں جانتے، مگر میرے پاس جانکاری ہے اس کی، یہ کب اس کی روح میں نکالوں گا، تو مجھے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے۔ ایک آدمی مرا ہے تو کیوں چلا رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے؟ ان کی موت پہ مت چیخ، اپنی حالت پہ چیخ، تیری موت کل ہوگی، اپنی زندگی پہ چیخ، اپنی حالت پہ چیخ، اس کی حالت پہ کیا تو روتا ہے، اپنی حالت پہ افسوس کر۔ آیا ہے کتاب میں فرشتے کی اس بولی کو اگر گھر کے لوگ سن لیں، مردہ کو چھوڑ کر سب جنگل نکل جائیں گے، لاش سڑ جائے گی، کوئی دفنانے والا نہ ہوگا، مگر چونکہ اس بات کو جنات اور حیوان کے علاوہ کوئی نہیں سنتا ہے، انسان سنے تو سینہ پھٹ جائے، مرنے والا اپنی جگہ سڑ جائے گا، کوئی دفنائے گا نہیں، گھر کے سارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ جب مردے کو دفنا کے آپ گھر سے قبرستان سے لوٹتے ہیں، معلوم ہے دفنانے سے پہلے آپ چیختے تھے، آپ چلاتے تھے، وہ جوان بیوی چھوڑ کے مرا تھا، بیوی سر کے بال نوچتی ہے، دیوار سے سر ٹکراتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے کہتے ہیں اب میں زندہ رکھ کے میں کیا کروں، مگر جیسے ہی دفنا کے آپ لوٹ جاتے ہیں وہ دھیرے دھیرے صدمہ کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، آپ کو صبر ہونے لگتا ہے، آپ پھر دوبارہ اپنی زندگی میں واپس لوٹنے لگتے ہیں۔ 2 10 دن 50 دن کے بعد ایسا لگتا ہے 40واں ختم ہونے کے بعد کوئی باپ اس کا تھا ہی نہیں جو مرا ہے، کوئی ماں اس کی تھی ہی نہیں جو مری ہے، کوئی بیوی اس کی تھی ہی نہیں جو مری ہے، کوئی شوہر اس کا تھا ہی نہیں جو مرا ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا، اس کو ہم تاریخ کے بستے میں ڈال دیتے ہیں، تھا کوئی مر گیا، اب یہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے میں کل کھاؤں گا کیا، میں رہوں گا کیسے، میں دوسروں سے سلوک کروں، شادی فلاں کے گھر میں کیا تحفہ لے کے جاؤ، بھول گیا اس کو جو 40 سال جھوٹ بول کے مکان بنایا تھا، بیوی بھول گئی، جو 40 سال نماز چھوڑ کے گھر بنایا تھا، اس کے بچے بھول گئے، وہ اللہ سے بھیک مانگتا تھا الہی ابھی نہیں مروں، بچے چھوٹے ہیں، ابھی نہیں مروں، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی نہیں مروں، میرا بیٹا کسی لائق نہیں ہوا ہے، میری بیوی کیا کھائے گی، وہ بھول گیا بدتمیز کہ کل مرے گا، آگ میں جلے گا، کبھی اس کے بارے میں چرچا نہیں کیا، ابھی مر گیا، ابھی زیادہ سزا میرے پاس نہیں ہے، ابھی زیادہ روزہ میرے پاس نہیں ہے، الہی ابھی موت مت دینا،
अभी जी भर के तहज्जुद नहीं पढ़ा हो, जी भर के इशराक नहीं पढ़ा हो, जी भर के अवाबीन नहीं पढ़ा हो, जी भर के तिलावत नहीं किया हो, इलाही जी भर के 100 रकात नमाज नफल अदा नहीं किया हो, ये बताए कोई करोड़ में कोई ऐसा मिलेगा जो ऐसा बोलता हो इलाही अभी नहीं मरे तो 4-5 साल की जिंदगी और दे दे, ताकि रोजाना जी भर के 5 नमाज़ें बाजमात मस्जिद में पढ़ लो और तहज्जुद भी पढ़ लो, इशराक भी पढ़ लो, अवाबीन भी पढ़ लो, नमाज़ पंजगाना के अलावा 50 रकात नमाज नफल डेली पढ़ लो, करोड़ों में कोई नहीं मिलेगा, ये बोलने वाला मिलेगा। इलाही अभी मौत मत दे, बेटी छोटी है शादी दिला दो उसको, बेटा छोटा है उसको पढ़ा दो, मेरे मरने के बाद बच्चे भी लग जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, खिलाने वाला कौन होगा? ये यकीन कर ले कि तेरे मरने के बाद तेरा बेटा तुझसे अच्छा खाएगा, तेरे मरने के बाद तेरी बीवी अच्छी हालत में रहेगी, क्योंकि जो कायनात को चलाता है, जो अल्लाह पर यकीन पुख्ता कर ले, वो जानता है कि जो अल्लाह मुझे खिलाता है वही अल्लाह मेरी औलाद को भी खिलाएगा, जो अल्लाह मुझे खिलाता रहा मेरी औलाद को भी खिलाएगा। ये यकीन जब पुख्ता हो जाता है तो आदमी रोजी की फिक्र कम करता है, जन्नत की फिक्र ज्यादा करने लगता है, क्योंकि अभी जन्नत की फिक्र नहीं है, इसीलिए रोजी की फिक्र है, रोटी की फिक्र है। मरने के बाद कल फातिहा पढ़ने तक बेटा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग थे अरबों की दौलत छोड़ के मरे, कोई बेटा कब्रिस्तान पे नहीं जाता है, 40 माह के बाद सब भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? जब रिश्तेदार दफना के कब्रिस्तान से वापस लौटते हैं तो कब्र फरिश्ता कब्र की मिट्टी लेकर उनके रिश्तेदारों के सर पे फेंक देता है और कहता है भूल जाओ इसे, ये अपने अंजाम को पहुंच गया, अब तुम अपनी फिक्र करो, अपने अंजाम पे गौर करो, अपनी मौत की तैयारी करो, इसको भूल जाओ। जैसे ही कब्रिस्तान से बंदा लौटता है बेटे को सब्र हो जाता है, बीवी को सब्र हो जाता है, सबों को सब्र हो जाता है, रिश्तेदार को सब्र हो जाता है। धीरे धीरे वो मरने वाला अपने हाल पे पहुंच गया और यहाँ के लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर जाते हैं। जिसकी फिक्र में मैंने रोजा छोड़ा था, जिस बच्चों की फिक्र में मैंने नमाज छोड़ी थी, जिस बच्चों की फिक्र में मैंने करोड़ों झूठ बोला था, जिस बच्चों की फिक्र में न जाने हमने कितनी रात जाग कर हमने काम किया था, जिस बच्चे की फिक्र में वतन से बेवतन हुए थे, वो बच्चा मुझको भूल गया कि कोई मेरा बाप था और जो जिंदगी में कभी मुझको पाला था पोसा था। इसलिए नेक लोगों की कहानी यही मिलती है, वो अपने घर में मकानात की बात कम करते हैं, वहाँ तामीर सीरत की बात ज्यादा करते हैं। नेक लोगों की जिंदगी में ये कहानी मिलती है, वो अपने घर में बाल बच्चों पर अल्लाह की ज़ात पर यकीन और तवक्कुल को पुख्ता करते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वलियों के सरदार का नाम है, मुत्तकियों के इमाम का नाम है। ऐसा नहीं सिर्फ मस्जिद में बैठ के वो नमाज पढ़ते थे। उमर इब्न अब्दुल अजीज दुनिया इस्लाम का पाताज बादशाह था, जिसको 5वें खलीफे राशिद का नाम दिया जाता है। खुलफाए राशिदीन यानी वो खलीफा, वो नबी का नाइब, वो खलीफा जो राह रास्त पर हो, वो चारों खुलफा है, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, ये चारों खुलफा राशिदीन खुलफा अरबा कहलाते हैं। यानी ये चारों की खिलाफत राशिदा है, ये खिलाफत हक है, उसमें कहीं से कोई त्रुटि तलाश करना ये हिमाकत और बेवकूफ़ी है। बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले अच्छे लोगों की सोहबत में ना रह करके हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ गालियां देते हैं, बकवास कहते हैं, राफिजियत बढ़ रही है, लोग अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा से बुग़्ज़ रख रहे हैं। हजरत उस्मान गनी जिस जगह अपने घर में शहीद हुए थे, उस जगह के बारे में आया है कि 30,000 खत्म कुरान उस जगह उस्मान गनी ने किया था जिस जगह उनकी शहादत उनके घर में हुई थी। इतना बड़ा तकवा परहेजगारी का मीनार कहीं आप नहीं देखेंगे। वह ज़ुन्नुरैन मुस्तफ़ा के दामाद हैं, उनके निकाह में मुस्तफ़ा की 2 शहजादियां हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े मुत्तकी जब कब्रिस्तान में जाते तो कब्र को देखते थे, इतना रोते थे कि दाढ़ी भीग जाती थी, दाढ़ियां भीग जाती थी, दाढ़ी भीग जाती थी, रोते रोते मिट्टी जमीन की भीग जाती। किसी ने पूछा हुजूर क्यों इतना रोते हैं कब्र को देखकर? कहा हुजूर ने कहा था कि मरने के बाद सबसे पहली मंजिल कब्र है, उस मंजिल में जो बंदा कामयाब हो गया आने वाली मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएगी। यानी हश्र की मंजिल, कब्र हश्र की मंजिल और पुलसरात की मंजिल, नामे अमाल के तौले जाने मीज़ान की मंजिल, बेशुमार मंजिलें आएंगी, वह सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। अगर पहली मंजिल में बंदा बच गया तो उस्मान गनी कहते हैं मैं इसी पहली मंजिल को देखकर मैं रोता हूँ कि मेरा इसमें क्या होगा। जो ज़ुन्नुरैन है, जिनके निकाह में हुजूर की 2 शहजादियां हैं जो दामादे पैगंबर है, उनको इतना डर है कि मेरा इस कब्र में क्या होगा। जिनके जन्नती होने की बशारत पैगंबर आज़म जो जन्नत के मालिक हैं, उसने जन्नत की बशारत ही नहीं दी, जन्नत की सनत दे दी, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। सारे सहाबा तो जन्नती है ही, लेकिन उन सारे सहाबा में 10 सहाबा जिनको हुजूर ने स्पेशल तौर पर जन्नत का मुज़्दा सुनाया है, वो अशरे मुबश्शरा में उस्मान गनी एक शामिल है। उसमें वो अशरे मुबश्शरा की सनत पाने वाला, जन्नत का टिकट हुजूर से हासिल करने वाला इतना रो रहा है कि
मेरा इस कब्र में क्या होगा। मुझको कौन जन्नत की सनद दे सकता है, मेरा पीर नहीं दे सकता है। पीर खुद रात भर रोता है, इलाही मेरी मौत ईमान की हालत में देना। खुद पीर 50 दरगाहों पे हाजिरी देकर वो अपने ईमान की हिफाजती सलामती की दुआ की भीख मांगता है। हमें जन्नत की सनद कौन दे सकता है, हम जन्नत कौन जाएगा उसकी पहचान कोई बता सकता है, जन्नत जाने वाला कौन कौन सा काम है ये रास्ता कोई दिखला सकता है, लेकिन परफेक्ट में तू जन्नत जाएगा ही ये कोई नहीं कह सकता है। यह सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की ज़ात गिरामी है, वही ज़ात कह सकती है, क्योंकि वह जन्नत के मालिक हैं। वो जिसको चाहे जन्नत की सनद दे दे। तो पीर भी रोए, मुरीद भी रोए जब इस्लामी सोच उसको पैदा हो जाएगी, क्योंकि जन्नत के मालिक का दामाद रो रहा है। हजरत मौला अली हैं, एक बार कह रहे थे कि जाओ मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। वो अली जिसका नाम ले लेके आज आदमी खाना खाता है, जिसका नाम ले लेकर के आज लोगों के जज्बात से खेलता है, जिसका नाम ले लेकर वो चंद सिक्के कमाता है। अब मौला अली की नमाज नहीं लिया है उसने, मौला अली का रोजा नहीं लिया है उसने, मौला अली का लिबास नहीं लिया है उस बंदे ने, मौला अली का सिर्फ नाम लिया है। क्यों? ताकि मौला अली का नाम ले इसकी जेब भरे, मौला अली का नाम ले इसका कुर्ता भरे, मौला अली का नाम ले इसका घर बने, मौला अली का नाम ले इसकी जमीन खरीदी जाए, मौला अली का नाम ले इस बच्चे को केक और सेब और संतरा खिलाए। अली अली करे इसका घर बने, अली अली करे इसको जमीन मिले, अली अली करे इसकी जेब रुपया से भरे। इसलिए वो अली अली करता है, अली अली बोलता है। उमर उमर नहीं बोलता है, उस्मान उस्मान नहीं बोलता है, अबू बकर नहीं बोलता है, वो अली अली बोलता है। क्यों? वो जानता है कि सामने बैठे हुए लोग अली अली के नाम से झूम जाएंगे, पैसा निकलेगा। उमर का नाम ले कोई पैसा नहीं देगा, उस्मान का नाम ले कोई नहीं पैसा देगा, सिद्दीक का नाम ले शायद के बदन में हरकत न पैदा होगी, अली का नाम ले बदन में हरकत पैदा हो जाएगी। इससे राफिजियत को फरोग मिल रहा है, राफिजियत बढ़ रही है, शियत बढ़ रही है। लोग अहले बैत अतहार की मोहब्बत में सहाबा को गाली दे रहे हैं, लोग फजीलत में हजरत मौला अली को आगे बढ़ा के तफसीली बन रहे हैं, जबकि बात अज खुदा बुजुर्ग तो ही ये मुस्तफा जान रहमत की ज़ात गिरामी है। और बाद पैगंबर अगर सबसे बड़ी ज़ात अफजल ज़ात किसी की है वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी है। अफजलुल बशर बादल अंबिया, यानी अंबिया के बाद सबसे अफजल ज़ात हजरत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है, जो सबसे अफजल है उसका नाम सबसे ज्यादा होना चाहिए। सिद्दीक़ के बाद उमर सबसे अफजल है, उमर का नाम होना चाहिए। उस्मान सबसे अफजल है, उनका नाम होना चाहिए। हजरत मौला अली चौथे खलीफा है, हजरत मौला अली रसूल पाक के दामाद हैं। हमने सिर्फ नाम लिया है उनका काम अगर ले लेता, ये पैसा कमाने वाला ये साल के 360 दिन नमाजें छोड़ता है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है। जैसे ज़िना करना हराम, वैसे ही नमाज पंजगाना छोड़ना हराम। जैसे शराब पीना हराम, वैसे नमाज पंजगाना छोड़ना हराम। जैसे सूद खाना हराम, सूद खाने का मतलब हुआ सूद के 70 गुना होते हैं, उसमें अदना गुना यह है कि बंदा अपनी माँ से ज़िना करे। अय्यन कहा रजुल उम्मा, यानी एक आदमी अपनी माँ से निकाह करे। ये सूद खाने के जो 70 गुना होते हैं उसमें अदना गुना यह है अपनी माँ से ज़िना करना। अब धड़ल्ले से सूद खा रहा है और सूद को सिर्फ दौलत बनने का नशा, मालदार बनने का नशा, समाज में सबसे अच्छा घर, सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छा बैलेंस जमा करने का नशा, ताकि बेटी की शादी में लूट के झूठ बोलकर पैसा कमाए और पानी की तरफ पैसा बहा दे और सारा गांव वाला बोले कि इससे अच्छा खाना कोई नहीं खिलाया, इससे अच्छा गोश्त कोई नहीं खिलाया। इतना ही सुनने के लिए ये करोड़ों साल का जहन्नम खरीदा है, ये जहन्नम की आग खरीदा है, ये हजारों नमाजें छोड़ा है। जलसे में आना नफल है, अल्लाह रसूल का जिक्र करना बैठ में तन्हाई में कुरान पढ़ना नफल है, इफ्तार करवाना नफल है, मस्जिद में 50 करोड़ लगा देना नफल है, और 1 रुपया जो ज़कात का है वो फर्ज है। जब तक कोई फर्ज नहीं अदा करेगा 50 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे वो नफल नेकी लटकी हुई रहेगी। 1 लाख आदमी को कोई हर साल हज करवा दे वो नफल नेकी है। अपना फर्ज अदा करना फर्ज है, और जब तक अपना फर्ज न अदा करे नफल कबूल नहीं होगा। 1 लाख आदमी को रोजाना दिन में इफ्तार करवाए ये नफल है। अपना रोजा रखना फर्ज है, जब तक अपना रोजा नहीं रखेगा उस वक्त तक 1 लाख आदमी को इफ्तार कराने का सवाब वो लटका हुआ रहेगा, जब तक कि वो फर्ज से सुबकदोश न हो जाए। नमाजें छोड़ी थी ताकि पैसा कमा ले, रोजा छोड़ा था ताकि पैसा कमा ले। अगर वो अली अली करके पैसा कमाना चाहता है, जिस दिन मौला अली का कैरेक्टर वो देख ले उस दिन उसे दुनिया से नफरत हो जाएगी, उस दिन उसको अली अली का नाम कम लेगा, अली का काम ज्यादा करने लगेगा, मौला अली का कैरेक्टर का फॉलोअप करेगा। ये 60 दिन नमाजें छोड़ के क्या हासिल करना चाहता
चाहता है, ये रोज रमजान के रोजे छोड़कर क्या हासिल करना चाहता है, ये जुमा की नमाज छोड़ के क्या हासिल करना चाहता है। सारी जिंदगी अली अली करते मर जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल वह होगा जो हुजूर कहते हैं, अपना मन नहीं चलेगा, हुजूर का पैगाम चलेगा, हुजूर की बात चलेगी। शैतान और अपने नफ्स को समझाने के लिए अपने मनमानी फॉर्मूला नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ बुजुर्गों का वो कैरेक्टर कि उसने ऐसा संदल चढ़ाया, चादर चढ़ाया तो बुजुर्ग जन्नत चला गया, वो संदल चढ़ाने वाला वो संदल ही नहीं चढ़ाया था, वो संदल के साथ साथ 40 साल से इशा के वजू से फजर पड़ रहा था, तो वो उसको तुम भूल गए और संदल को ले लिया। उसका रोजा जो हर महीने में 25 रोजा रखता था और सिर्फ साल के 3 साल के एक रमजान के रोजा वो नहीं रखता था, और वो सिर्फ फूल गुलाब नहीं चढ़ाता था, और तुमने गुलाब को ले लिया। क्योंकि मजार पे गुलाब चढ़ाना इसमें पैसा नहीं लगता है, उसमें ढेर टाइम नहीं लगता है। 50 रुपए का गुलाब खरीदा और अजमेर में चढ़ा दिया, ये आसान काम है। लेकिन इशा के टाइम में इशा पढ़ना, फिर फजर के लिए इंतजार करना और सारी जिंदगी पढ़ना, ये मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम बंदा नहीं करता है, वह सोचता है 50 रुपए के गुलाब से काम चल जाए तो 50,000 रुपए की ज़कात कौन निकालेगा। इसलिए शैतान उसको थपकी दे के सुला देता है। तुम जलसे में गए थे ना, जन्नत तो तेरे बाप की जागीर हो ही गई है। तुम अजमेर 10 बार गए हो ना, जन्नत तो तेरी जागीर हो ही गई है। अजमेर गए हो टका के लिए, जन्नत के लिए कब अजमेर गए हो? अजमेर गए हो बेटा के लिए, जन्नत के लिए कब अजमेर गए हो? अजमेर गए हो प्रधानी के इलेक्शन जीतने के लिए, बेटा के लिए, जन्नत के लिए कब अजमेर गए हो? यही तो बोला, इस बार गया था गाड़ी मिली, अगली बार गया था मकान मिला, उसके बाद गया था बेटा मिला, उसके बाद गए थे बेटी मिली, उसके बाद गए थे अच्छा दामाद मिला, उसके बाद गए थे बेटी की नौकरी मिली, उसके बाद गए थे अच्छी बहू मिली। तो हर बार बेटा बहू दामाद करने गया है, तो अजमेर वाले की मोहब्बत में जन्नत के लिए कब गया है? जन्नत के लिए कब गया है? जो जन्नत जहां से मिलती वहां तुम दुनिया के लिए गए हो। इसका मतलब है कि गरीब नवाज का नाम अगर लेता है सिर्फ दुनिया के लिए, जिस दिन गरीब नवाज का कैरेक्टर देख लेगा कि वह पैदा हुए थे ईरान में, वतन छोड़ा रब के लिए, पंचक्की को बेच दिया रब के लिए, बाग को बेच दिया रब के लिए, कल क्या खाएगा वह नहीं सोचा कि कल मैं क्या खाऊंगा। पंचक्की रोजी का सहारा था, उसको बेच के गरीबों में खैरात कर दिया। एक बाग की रखवाली जो बाप से जो बाग मिला था उसे बेच दिया, ये न सोचा कल मैं क्या खाऊंगा। अल्लाह पर मजबूत यकीन था जो उसे दौलत को बेचने पर मजबूर किया। निकल गए, 25 साल तक इल्म हासिल किया, 30 साल तक अपने उस्माने हारूनी शेख मुर्शिद कामिल का बिस्तर ढोया, सफर करते रहे। रोजी कहां से मिलती रही? मजबूत यकीन था कि जो अल्लाह पैदा किया है वह रोजी देगा। जब अल्लाह शराबी को रोजी देता है, जब अल्लाह पापी को रोजी देता है, मैं तो रब का काम करता हूं, मुझे मेरा रब जरूर उससे अच्छी रोजी देगा। ये यकीन तो पहले जम जाए, रोजी कहां से मिलेगी वो अल्लाह जानता है। उन्होंने अपना वतन छोड़ा था जो मुश्किल काम है, अपनी पंचक्की बेची थी जो मुश्किल काम था, अपना बाग बेचा था, जरिया मास जो था मुश्किल काम है। 25 साल पढ़ना लिखना, पढ़ने लिखने से पैसा नहीं मिलता है, पढ़ने लिखने के बाद करोड़ रुपए नहीं मिलते हैं। अब अभी दुनिया का इल्म रहे तो रहे, आखिरत का इल्म है जिसके पढ़ने के बाद लोग गाली ही देते हैं। मदरसा चलाने वाले को हरामखोर कहते हैं, जलसा करने वाले को लोग कहते हैं दीन बेच रहा है, मौसिन को कहते हैं बेसहारा लाचार है, यानी मदरसा चलाएं तो हरामखोर हो जाए। रमजान के बाद बाइक खरीद ले, ये कोई सेठ इसको बाइक दिया होगा, मौलवी कोई हज भी कर ले तो कोई बंबई का सेठ इसको हज करवाया होगा, यानी कोई जलसा करवा दे, ये जलसा का पैसा मार के अपना घर बना लिया। यानी ये ऐसी लाइन है जिसमें दुनिया में इज्जत तो कम मिलती है, गाली ज्यादा मिलती है, यहाँ लानत मलामत ज्यादा मिलती है, लोगों के तान तशनी के जुमले ज्यादा मिलते हैं। और जो सब्र के साथ इन चीजों को बर्दाश्त कर लिया, गालियां सुनता रहा, लानत मलामत के जुमले सुनता रहा, सबका सुन के दीन का काम करता रहा, तो जहां 1 लाख बरस का नफल सजदा काम नहीं आता है, वहां गालियां सुनकर जो दीन का काम करे, एक एक गाली का जुमला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है, उसके दर्जात को फरोग दे देता है। उसके लिए जिगर चाहिए। ये दीन का काम आसान नहीं होता है, उसके लिए सेलेक्टेड लोग होते हैं जिसको अल्लाह चुन लेता है, जिसके सीने में अल्लाह सब्र देता है, तहम्मुल देता है, जो लड़ना नहीं जानता है, बल्कि लड़ाई कोई थोपे वो लड़ाई से कन्नी काटता है। लेकिन अगर इस्लाम और कुफ्र के नाम पे जंग हो कि वह गर्दनें कटाकर इस्लाम की आबरू बचाता है, वह जी चुरा के नहीं भागता है, पहले अपने भाई से नहीं लड़ता है, अपनी बहन से नहीं लड़ता है, वह जमीन के नाम पे नहीं लड़ता है, वह समाज में मोहल्ले में खान बिरादरी और नदाफ और जोलहा के नाम पे नहीं लड़ता है, वह अपने पीर के नाम पे नहीं लड़ता है, वह मस्जिद में मतवल्ली नहीं बना उसके लिए नहीं लड़ता है, मदरसे में मेंबर नहीं बना उसके लिए नहीं लड़ता है, जलसे के पोस्टर पर उसका नाम नहीं दिया उसके लिए नहीं लड़ता है, वह नहीं लड़ता है, वह काम करता है। लेकिन अगर कोई कुफ्र इस्लाम को धमकाए, वह जी चुरा के
ڈر نہیں بھاگتا ہے، وہ سینہ سفر ہو کر گردنیں کٹا کے اسلام بچاتا ہے، اور یہی فارمولہ اسلام دیتا ہے۔